Hi guys, I'm Janvi Kapoor and I play Mrs. Mahi in the movie Mr. and Mrs. Mahi. I am Abhishek Nair, and I am one of the coaches in the movie who coached Janvi and Rajkumar Rao. Hi, I'm Vikrant Yeligeti. I'm one of the coaches to train Janvi and Rajkumar Rao for the movie Mr. and Mrs. Mahi. Hi everyone, I'm Sharan Sharma. I'm the director of Mr. and Mrs. Mahi, and I pretended to be like one of the coaches of Janvi. अगर क्रिकेट वो चीज है ना माही जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी होती है तो तुम बनी हो क्रिकेट के लिए। तुम समझ रही हो ना तुम क्या करने जा रही हो? इतने सालों की मेहनत, एक सेट करियर, तुम अपनी पूरी लाइफ खत्म करने जा रही हो। खत्म नहीं पापा, शुरू करने जा रही हूँ। So Mr. and Mrs. Mahi, of course, no dream is chased alone. ये कहानी है उस या ये इसका सारांश है कि आप अकेले नहीं चलते हैं. You need somebody next to you, pushing you all the time, motivating you, and that is where Sharan, I'll come to you first. Why cricket and why this movie? कहाँ से? Is there a cricket connection? और थोड़ा सा if you can just tell us, summarize कि भाई what is Mr. and Mrs. Mahi? Absolutely. So, firstly, hi Akash. So, it's a big honor and a big deal for me and all of us to be here and chatting with you. I'm a regular consumer of all of your content, so it's actually a very big deal to be chatting with you. So, just to start off, there's a dialogue in the film that cricket is life or life is cricket, and that is really the mantra of my life. Like, I'm an absolute cricket diehard lover. As a kid, it was my dream to want to play cricket in life. So, this film is really the closest I've come to kind of living that dream and being on that journey. So I've been obsessed with cricket, and from the time I started working as an assistant director, all I really wanted to do was make a cricket-based film. And I've taken numerous scripts to Karan sir. So when he liked this idea, we really jumped on it, and this was the chance to finally tell a story set against the backdrop of cricket and kind of live every fantasy and everything that I've dreamt of in my head over the course of the journey of this film. जब ये स्पोर्ट्स मूवीज की एक इशू रहती है कि you say कि that reality is not there यार. मतलब वो you are a sports person, you're portraying a sports person, पर वो बैटिंग अच्छे से नहीं हो रही या बोलर जैसा नहीं दिखता, and that brings pressure. Was there pressure कि यार मैं बैटिंग करूंगी तो it has to look authentic, क्योंकि authentic नहीं है तो everything else might actually just falls flat. तो प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ी थी, and were you slightly circumspect कि बाकी सब कुछ तो ठीक है पर क्रिकेट तो खेलना पड़ेगा, उसमें तो एक्टिंग नहीं हो पाएगी, शॉट तो कवर ड्राइव की तरह मारना पड़ेगा? नहीं, ऑफ कोर्स काफ़ी प्रेशर था. आई थिंक स्पेशली क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है वो, जैसे कि आपने अभी सुना, क्रिकेट के इतने दीवाने हैं, एंड आई न्यू दैट ही वुडंट सेटल फॉर even I think 5 on 10 or even 10 on 10 in terms of effort. I think वो शुरू से बहुत ही क्लियर थे कि उनको VFX का इस्तेमाल नहीं करना था, क्योंकि हमने काफ़ी फिल्म्स देखे जिसमें उन्होंने VFX बॉल का इस्तेमाल किया था, फेस रिप्लेसमेंट का इस्तेमाल किया था, and he didn't, I guess he felt similarly to what the audiences felt, that वो एक authentic feel जो है वो आया नहीं था उन फिल्मों में. So he was very clear कि हम डबल नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम VFX नहीं इस्तेमाल करेंगे, और मुझे ही पूरी मेहनत करके पूरी तरह से इस दुनिया में समर्पित होना है, पूरी तरह से क्रिकेटर बनना है. And I really think that he did his research and he found, we couldn't have asked for better coaches. I think he found the best people that there were. The only people that I think could have taken me to the finish line or have gotten any results out of me. I don't think it would have been possible for anyone else to have done this. I definitely think that I would have given up on day one or had a heart attack or a cardiac arrest if it wasn't for both of my coaches. So yeah, I mean, there was a lot of pressure, there was a lot of hard work. I think शुरू में मैंने शायद थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट भी कर लिया था कि हाँ, क्या ये होता है, डंडे से मारना है बॉल को. इतनी जानकारी नहीं थी क्रिकेट की, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि जिस तरह की डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह का फोकस लगता है क्रिकेट में, फिजिकलिटी, फिजिकल ट्रेनिंग, I like hats off to every athlete in the world, but especially a cricketer, especially in this country, क्योंकि I think इस देश में क्रिकेट एक स्पोर्ट ही नहीं बल्कि एक इमोशन है, and I think I realized that during this film. फैंटास्टिक. अभिषेक, समर्पित होने की बात की है इन्होंने, तो आप यूर हार्ड टास्क मास्टर, आई नो यू. तो उसमें तो इनका समर्पण वो 100% था. वर यू सेटिस्फाइड कि
यार ये हाँ ठीक, अब ठीक लग रहा है। मतलब आई एम श्योर शुरुआत तो वैसी नहीं होगी ना, जब पहली बार बैटिंग की होगी तो लगाओ करे नहीं ये तो साइड ऑन गेम है प्लीज, सो साइड ऑन भी रखना है, एल्बो ठीक नहीं आ रही है, हेड तो थोड़ा गिर रहा है। हाउ डिफिकल्ट वाज इट? डिफिकल्ट तो था क्योंकि दोनों कंधे ले लिए हमने उनके। राइट पहला लेफ्ट शायद फिर राइट, दोनों एक 6 6 महीने में एक कंधा उन्होंने समर्पित किया हमें। So now within a span of 2 months, she has kind of torn her ligaments in left and right shoulder. And now we land up in a spot where like, okay, how do we make this film? But I think we took a very wise call of doing all the correct rehab and giving her all the time needed to kind of recover from the injury. शुरू से एक्चुअली जब शरण और मेरी बातचीत हुई थी और उनके एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली मुझे पता चला कि वांटेड इट टू बी लाइक अ प्रॉपर क्रिकेट फिल्म। तो जब हम जानवी को फर्स्ट टाइम मिले तब मैंने उससे पूछा कि हु ऑल डू यू नो इन द इंडियन क्रिकेट टीम। उनके जवाब से मैं डर गया था और तब मुझे पता नहीं था कि ये आगे कुछ हो पाएगा कि नहीं, बिकॉज एट दैट पॉइंट एकदम ही नोविस थे और उनके पिताजी ही वाज द बिगेस्ट क्रिकेट फैन। तो मैं यही सोच रहा था एक ही फैमिली में एक बड़े क्रिकेट फैन है और एक को क्रिकेट का कुछ भी आइडिया नहीं था। सो इट वाज हार्ड इनिशियली, बट आई मस्ट से in all the athletes that I've worked with, Janvi has been the most dedicated. And वो एक रहता ना मूवी स्टार के साथ आप काम कर रहे हो तो उनका एटीट्यूड कैसा रहेगा, हाव भाव कैसा रहेगा, टैंट्रम्स कैसे रहेंगे, बट शी वाज आउटस्टैंडिंग नॉट ओनली इंजरीज के समय बट हर बार, क्योंकि वो एक ही ऐसे खिलाड़ी थे जो पवई आने के लिए राजी थे, क्योंकि वरना कोई राजी नहीं होता पवई आने के लिए, और वो भी जूहू से पीक आवर्स ट्रैफिक में। So for me, I think I can very well say, as important as this movie was for Janvi, for Vikrant and me, this was very important, क्योंकि अगर जानवी से करा सकते हैं तो हम किसी से भी करा सकते हैं। सो विक्रांत ये तो मतलब कोई कोई लिटरली हो गया ना कि शोल्डर्स पे, वो कहते हैं कि कंधों पे उठाना पड़ेगा। सो आपने दोनों शोल्डर्स अगर इनके ले लिए तो ये पिक्चर की जो पूरी मेहनत है, आई मीन ऑन हर शोल्डर्स ओनली, क्वाइट लिटरली नाउ। सो क्या चैलेंज था वैसे शुरू में? कमिटमेंट तो हो गया, ये भी देख लिया जूहू से आना पड़ेगा पवई। आई लाइक पवई एक्चुअली। Powai is Bombay is Correct, Manhattan, yes, correct, right? correct. I'm in the real Manhattan right now, by the Oh way, wow. Janvi. Yeah, I'm there for the cricket. I'm here for the cricket. अच्छा तो विक्रांत क्या क्या मुश्किल था भाई, क्या चीज ये कमिटमेंट हो गई, लेकिन कमिटमेंट के बाद दैट्स जस्ट द स्टार्ट, पर बैट को पकड़ना है, मतलब डिड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम देयर कि बैट कैसे पकड़ना है, खड़े कैसे होना है, स्टांस के अंदर कैसे लगना चाहिए, फिर आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आई मीन हाउ डू यू टीच ऑल ऑफ दैट? नहीं, जैसे अभिषेक ने बोला, आई थिंक पहले दिन हम लोग थोड़ा डर गए थे। जैसे आई थिंक उसके वीडियोस भी आए थोड़े बाहर, उसमें आप देखोगे फॉर्म, टेक्निक, बैट और बॉल का कुछ संबंध नहीं था उसपे। तो हम लोग थोड़े डरे हुए थे, बट आई थिंक एक आध हफ्ते के बाद थोड़ा कन्विक्शन आया कि यार हो जाएगा, बिकॉज शी वुड टर्न अप, कुछ भी हो शी वुड शो अप एंड शी वुड बी देयर। हमने, अभिषेक ने मेंशन किया कि पवई गए, हमने ऐसी ऐसी जगह प्रैक्टिस की है, होटल के आइल्स में प्रैक्टिस की है, ऑफिस में प्रैक्टिस की है, पता नहीं कोई गार्डन में प्रैक्टिस की है और लाइट्स नहीं है वहां पे प्रैक्टिस की है। तो एक एक ये कन्विक्शन आ गया था कि हो जाएगा, क्योंकि कमिटमेंट है जैसे अभिषेक ने बोला। और उसके बाद एक एक चैलेंजेस, जैसे शरण का पहले से क्लियर ब्रीफ था कि बॉस हमको क्रिकेटर चाहिए, हमको एक्टर क्रिकेट खेलते हुए नहीं चाहिए, हमको क्रिकेटर चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो वो फिर धीरे 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 आई थिंक 2 कंधों के बाद आई थिंक एक नी का भी इंजरी हुआ, ऑल्सो शी वॉज कैरिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ निगल विद हर बैक, तो वो थोड़ा लोड। मेजर चैलेंज बाय द एंड ऑफ इट जब भी हम लोग शूट पे पहुंचे वो था कि वर्कलोड कैसे मैनेज करें, प्रॉपर क्रिकेटर के जैसे इतनी बॉल्स मिलेंगे, इतना ही टाइम मिलेगा, सो वी हैड टू गेट एवरीथिंग राइट। तो वो एक बड़ा चैलेंज हो गया था लास्ट में। बाकी तो सब आई थिंक हम लोग कन्विंस थे, टेक्निकलिटी सब सही हो गई थी, फॉर्म सही हो गई थी, सिर्फ वो एक रह गया था बस। पर जानवी कभी ऐसी स्टेज पे ऐसा लगा था कि यार ये मैंने ले तो लिया है, पर ऑफ कोर्स देयर इज रिस्पेक्ट की बड़ा मुश्किल है, एंड योर रिस्पेक्ट फॉर क्रिकेटर्स एज यू सेड ग्रू आफ्टर दिस, पर कभी लगा था कि यार नहीं हो पा रहा है यार? बहुत बहुत बार ऐसा किया था। आपको विक्रांत से एटलीस्ट कंधे पूछना तो चाहिए, नाजुक। इतने क्लासेस के दौरान मैं रोने लगती थी। डू यू रिमेम्बर लाइक एट द एंड ऑफ सो मेनी क्लास मैं कोने में बैठ के बस मतलब मैं बॉल को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हेलमेट के नीचे मेरे आंखों में जो आंसू जम रहे थे, लाइक इट्स हैपेंड सो मेनी टाइम्स। एंड सबसे ज्यादा तो आई थिंक इंजरीज के बाद, क्योंकि वो
एक इरिटेशन सा हो जाता था जब वो बिकॉज़ दे यूज्ड टू टेप माय शोल्डर्स और वो टेप लगा के निकाल इट वाज़ वेरी टफ एंड आई थिंक जो जिस तरह के वेदर कंडीशंस में हम शूट कर रहे थे अहमदाबाद में आई थिंक तकरीबन 45 डिग्रीज था और 12 घंटे उस पिच पे बिताना सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि विक्रांत के लिए पूरे टीम के लिए डीओपी के लिए बाकी सारे प्लेयर्स के लिए भी बहुत मुश्किल था और तो हाँ ऐसे कई बार लगता इनफैक्ट एक मैच है स्पेसिफिकली फिल्म में जिसके लिए हमें शायद 6 दिन अहमदाबाद में रुकना पड़ा लेकिन एंड में आई थिंक 9-10 दिन रुक गए हम तो आई थिंक 4th दिन जब आया था और हम देख रहे थे कि जितना काम हमें कंप्लीट करना था उतना हम नहीं कर पा रहे थे मैं रोने लगी क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि हम ये मैच कभी नहीं कंप्लीट करने वाले हैं मैं 6 बॉल पे अटकी हुई हूँ और ये आगे ही नहीं बढ़ रहा ऐसे लग रहा था कि मेरी दुनिया खत्म हो रही है इस पिच पे 45 डिग्रीज पे ये सारे पैडिंग के साथ और शरण इतने प्योरिस्ट है मैंने बोला कि मैं पैडिंग निकाल सकती हूँ प्लीज इतनी चीटिंग तो चलेगी पैंट के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है प्लीज गर्मी में मर रही हूँ मैं अच्छा बट शरण क्या मतलब व्हेन वर यू कन्विंस कि अच्छा अब हम सही जगह पे जा रहे हैं मुझे नहीं लगता वो अब भी कन्विंस्ड है वो अभी भी डाउट में है। नहीं 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 आई फील वेरी वेरी प्राउड जो हमने क्रिकेट का जो लेवल अचीव किया ये फिल्म में द क्रिकेट फैन इन मी इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ द लेवल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट दैट वी अचीव बट टू बी ऑनेस्ट ड्यूरिंग द प्रेप आई वाज वेरी नर्वस वेरी एंग्शियस वेरी ऑफन मैं उनके जानवी के ट्रेनिंग से निकलता था मैं अभिषेक से बात करता था एंड विक्रांत से बात करता था कि हाउ इज दिस एक्चुअली गोइंग टू हैपन या मतलब विल सेटल विद समथिंग कि चलो लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है नहीं हो पाया मतलब all of that but I think Abhishek and Vikrant were firstly so calm so confident कि don't worry हो रहा है there's progress it will work out just to give me so much confidence and just to give Janvi also so much confidence कि don't worry हो जाएगा and sometimes I used to wonder कि कैसे हो जाएगा like कैसे like इतना journey तो अभी भी बाकी है so literally there were moments where even right before going into shoot I had a lot of doubts in my head कि कैसे होगा but I think literally it was all of Janvi's hard work living outside of the comfort zone I think massively I think this film has been for me also and mainly for Janvi this whole film has been living outside the comfort zone every day was very challenging every day felt like an impossible day to achieve but I really think I'm so happy that we all hung in there supported each other through the hardest journey Vikrant was there with me on set I think he's seen me in every mood and every color and he's really been the rock with us on set and I think Abhishek's calmness and his smile that don't worry सब कुछ हो जाएगा really translated and I think I feel very very lucky इतने बार विक्रांत ने मेरे और शरण के बीच के झगड़े रोके मुझे काम डाउन करके और शरण को काम डाउन करके इतने बार मुझे याद है रात को आई थिंक फर्स्ट डे क्योंकि शूट के पहले कि आई डोंट नो इफ आई कैन जानवी का मैसेज आता है कि हम लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे 8 8:30 बजे आई थिंक वी वर डूइंग द शॉट्स इन हर बालकनी ऑफ द रूम फर्स्ट डे yeah आई रिमेम्बर और वो क्योंकि धूप इतनी थी और कंडीशंस इतने बुरे थे तो शरण भी चिढ़ जाता था और फिर मैं भी चिढ़ जाती थी और विक्रांत बीच में वो मीडिएटर बनता था हम दोनों के बीच के हो जाएगा कर लेंगे ठीक अच्छा बट डिड यू एवर लूज इट विद द कोचेस दो क्योंकि आई मीन दिस इज न्यूज़ टू मी कि डायरेक्टर और एक्टर जो आपस में लड़ सकते हैं मुझे नहीं पता था मुझे लगा कि दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल हमारी लड़ाई में भी बहुत बचपना था हम बस एक दूसरे को टॉन्ट अच्छा करते बट रहते थे मैं बस रोती रहती थी अच्छा बट व्हाट अबाउट द कोचेस के साथ कभी हुआ कि कोचेस आर टू हार्ड ऑन यू टू हार्श ऑन यू कि नहीं जानवी ये नहीं हो रहा है honestly उन्होंने I don't know how they are with the other people they are training लेकिन मेरे साथ तो बहुत प्यार से उन्होंने कोचिंग की बहुत मतलब बहुत बढ़ावा दिया बहुत encouragement दी उन्होंने हिम्मत दी I think हर मोड पर इंजरीज के बाद भी आई थिंक जब भी मैंने कितनी बार उनको कहा कि ये मुझसे नहीं होगा मैं और नहीं कर पाऊंगी बट आई थिंक फिल्म में जिस तरह से महिमा का गेम इम्प्रूव हुआ जब उसने अपने पति का कॉन्फिडेंस उसमें देखकर शी स्टार्टेड बिलीविंग आफ्टर सीइंग हाउ मच हर हस्बैंड इज बिलीविंग इन हाँ आई थिंक मैं खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगी जब अभिषेक सर और विक्रांत सर मुझ में विश्वास दिखाते थे
मैंने उनको लाइफ में सर नहीं बुलाया, वैसे पता नहीं क्यों कैमरे के सामने। आई नो। इतना सम्मान। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ, अभिषेक नायर, विक्रांत, मतलब इतने इतने प्यारे कोचेस हो गए हैं। आई हैड नो आइडिया। मेरी बेटियों को खेलना होगा, आई सेड इट टू यू। अरे ये बहुत, मैं नहीं तो है, ये बहुत मतलब हार्ड टास्क मास्टर है हम जानवी। लोग दिन में, ये हार्ड टास्क मास्टर है, बहुत मारते हैं ये। नहीं, ये तो मुझे ब्रेक्स में मैगी नूडल्स खाने देते थे। देख के चौंक जाते थे कि मैं कितना खा रही हूँ। डू यू रिमेंबर? मैं आई थिंक ये ट्रैवल को अवॉइड करने के लिए मैं कई बार आई यूज्ड टू स्टे इन पवई एंड क्रिकेट ट्रेनिंग सेशंस के बीच में मैं उनके किचन में जाके खुद के लिए चीज़ी मैगी नूडल्स बनाती थी और फिर ये देख के दंग रह जाते थे, क्योंकि शरण ने ये भी कहा था कि मुझे वज़न घटाना है रोल के लिए। लेकिन मैं चीटिंग करके खा लेती थी चॉकलेट मिल्क शेक मैगी। दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, कि मतलब प्रोटीन शेक फिर पीने पड़े, फिर बिकॉज नाउ यू मेंशन्ड, आई डोंट नो व्हाई यू नीड टू लूज वेट, पर इफ यू हैड टू, तो क्या डाइट पे भी फोकस था कि क्रिकेटर वाली डाइट भी होनी? I lost 8 kgs from when I started prep to now, 8 to 9 kg. बहुत भगाया इन्होंने, बहुत Okay, भगाया भागना ही है पड़ता इन्होंने। So in fact, first time when I met Abhishek, I think we were just chatting, and he asked me ki in our first film with Janvi and me worked together, ki why was Janvi running in that particular style? Was she trying to copy the real Lady Gunjan Saxena? And I said no, that is our running style. And Abhishek ke expression se I could tell that he was not at all happy with it. So Janvi literally has worked for 6 months on her running technique, literally for a shot that is in the film, maybe just for 30 seconds. So we had Sagar with us, who I think is a part of the strength SNC coach with the KKR team. Abhishek brought him in, and Janvi was just learning her running technique every day, because that one shot had to be right. We had just had to get it right, and yeah, that's the kind of approach that everyone kind of brought to the film. Awesome, guys. Awesome. It's absolutely outstanding. Acha, mujhe, that's just the final bits actually. Tell me about Chasing Dreams. Of course, when you started, this is a very different kind of journey. मतलब एक script है, script के अंदर, of course, you're chasing dreams. But this script is very different in a fashion कि cricket के अंदर you have to become a cricketer. So Janvi, I'll start with you. कि you have to first become a cricketer, play like a cricketer, train like a cricketer, and then of course there is a story that you have to live in the movie itself. Thoda sa just for the viewers, so what was it all about? What is the movie all about? Chasing the dreams and having a partner besides you. I think it's exactly what you said. I think the film is about chasing dreams. I think so many times in life you meet people or you're one of these people who कई बार आपको हिम्मत नहीं मिलती है कि आप अपने सपनों के पीछे you chase your dreams, या आपको वो हिम्मत नहीं मिलती है, बढ़ावा नहीं मिलता, वो encouragement नहीं मिलती अपने घर वालों से, अपने पार्टनर से, और फिर कई बार it results in not having enough self-belief. So I think this is a film for everyone who feels like they didn't get their chance to follow their dreams. And it's about so much more than that. I think it's about what it means to be really happy with what you're doing, what it means to I think कई बार हमने इतने सारे मूवीज देखे हैं जो कि अचीवर्स के बारे में हैं, लेकिन वो अचीवर्स की लाइफ में जो सपोर्ट सिस्टम होता है, उनकी कहानी क्या होती है। आई थिंक ये एक लव स्टोरी है उन लोगों के बारे में भी, सपनों के बारे में। या एंड ऑफ कोर्स हमारे फिल्म में बहुत सारा क्रिकेट है, बहुत अच्छा क्रिकेट है, बट देयर सो मच मोर। देयर इज ड्रीम्स, देयर इज रोमांस, देयर इज लाफ्टर, देयर इज एंड आई होप एंड प्रे कि जो भी ये फिल्म देखेगा उनको शायद थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि वो अपने बच्चों को, अपने पार्टनर्स को और बढ़ावा दे कि वो अपने सपनों के पीछे भाग पाए। Awesome. अभिषेक and विक्रांत, I'll come to you. तो ये जब ये शुरू हुआ था तो ये वाला आपका भी ड्रीम था कि okay, we have to make Janvi a proper cricketer, जो कि and because that will show on your ability to make her look like a cricketer. So your dream has realized, मतलब हो गया है, ये लग रहा है कि सब ठीक है, क्योंकि you are the backroom staff जिनके बारे में अभी बात हो रही है, पर most people won't even know कि इतनी मेहनत गई थी जितनी आप लोगों ने साथ में की। Actually, technically मेरे लिए जानवी is the first woman cricketer I've ever worked with. उसके बाद काफी लोग के साथ काम किया, but she was the first person I actually worked with, and to be honest, वहां से मुझे थोड़ा सा मुझे लगा कि यार I can work with women, क्योंकि वरना हमेशा डर रहता था कि यार किसी भी to work with a woman, especially after working in men for so many years, how is it, will it ever happen? Then I managed to work with a few other women, but
फॉर मी आई थिंक शुरू में जब शरण पहले बार हम लोग ने बातचीत की थी अबाउट दिस मूवी अबाउट गेटिंग जानवी एंड यू नो हिज एक्सपेक्टेशंस, तो कहीं ना कहीं आई थिंक विक्रांत एंड मी बोथ ऑफ अस टुक इट लाइक अ टास्क। ऐसा था कि यार अगर जानवी को हम बना सकते देन समवेयर और द अदर एज कोचेस वी वुड यू नो हैव दिस फुलफिलमेंट इन टर्म्स ऑफ रियलाइजिंग शरण's ड्रीम, क्योंकि शरण हमेशा से शुरू से जब एक्चुअली इस फिल्म की कम बातचीत की थी और आईपीएल का ज्यादा बात करते थे, वो ऑक्शन के बारे में, टीम डायनामिक्स के बारे में, तो इतने पैशनेट थे वो क्रिकेट को लेकर। तो हम दोनों का ये एक सोच था कि यार कहीं ना कहीं ये मूवी जानवी के लिए तो बनाने हैं, लेकिन शरण के लिए क्रिकेट अच्छा हो, मूवी कैसा भी हो, बट क्रिकेट शुड फील लाइक इट्स नेवर बीन डन द सेम वे बिफोर। तो अलोंग द वे नॉट ओनली मूवी, शरण ने काफी कुछ हेल्प किया केकेआर को इन डिफरेंट वेज, उनके एडवाइसेस, उनके चुटकुले के साथ। बट ऑनेस्टली फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव इट वाज अबाउट गेटिंग इट राइट फॉर शरण एंड फॉर जानवीज फादर, क्योंकि मुझे याद है जानवी ने मुझे कहा था कि जब उन्होंने अपने पिताजी को कहा कि वो क्रिकेट की मूवी बना रहे, तब उनके आंखों से भी आंसू निकले थे कि मेरी बेटी क्रिकेट को लेकर कुछ करने वाले हैं। सो देयर वर टू पीपल ऑलवेज एट द बैक ऑफ अ माइंड कि यार जानवी को तो करना ही है, बट इन दोनों को निराश नहीं करना है, बिकॉज दे शुड बी प्राउड एट द एंड ऑफ इट दैट समथिंग दे लव सो मच इज रियलाइज्ड इन द राइट वे। फैंटास्टिक विक्रांत, योर थॉट? नहीं, जैसे अभिषेक ने कहा, आई थिंक शरण का जो डिटेलिंग था, जो क्लियर ब्रीफ था, और जस्ट उसका पैशन के जिस तरह से वो क्रिकेट देखते हैं, परस्यू करते हैं, और एज अ फैन, एज अ नर्ड, ये था कि भाई कुछ भी हो जाए क्रिकेट से कॉम्प्रोमाइज ये मूवी में नहीं होगा, और दिस हैज टू बी अ फिल्म वेयर you'll have to appreciate cricket at its truest form. बस वो एक हमारे दिमाग में पहले से था कि भाई जानवी ने क्रिकेट नहीं खेला है, फलाना फलाना सारी चीजें हमारे सामने है, बट अभी से जो भी रोड मैप रहेगा उसका हमको पता है कि कहाँ पहुंचना है। क्लियर गोल था शरण का, एकदम क्लैरिटी से उसने बताया कि ये चीज हमको चाहिए, और वो अचीव करने के लिए एक इमीडिएटली एक थॉट दोनों में आया कि ये एक टास्क की तरह लेंगे, और एक एक्साइटिंग टास्क था फर्स्ट डे से कि अगर हमने जानवी को यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट जी पहुंचा दिया तो हमको एक खुद में वैलिडेशन मिल जाएगा एज अ कोच। तो वो एक मुझे एकदम याद है, वो एक कॉन्वर्सेशन एकदम बिल्कुल याद है, हमारे दोनों के बीच में हुआ था, और वो एकदम अभी भी फ्रेश है। था विक्रांत सेन पॉइंट ए से पॉइंट जी, मतलब उन्होंने, मैं तो ए से सी डी पे वो जी तक लेके गए, मतलब फुल एंड कंप्लीट। जानवी इज रेडी फॉर वुमेन्स प्रीमियर लीग। Oh wow, okay, that's incredible. Sharan, so final thoughts. मतलब अभी तक तो मेरे को realize हो गया you're like a perfectionist कि भाई सब कुछ वैसा ही होना चाहिए. No VFX, no body doubles. तो what you guys have achieved is like 100% satisfaction कि ये अब काम बिल्कुल अच्छे से हो गया. I have also chased my dream. Courtesy the people who have worked with you for you. Absolutely, sir. I think for somebody like me who's so obsessed with cricket, the chance to make a cricket film, it's the biggest thing in my life. It's absolutely the biggest thing in my life. And intention yahi tha ki when somebody watches the film, obviously we want them to love the film, but the cricket can't go wrong. Like it's just too sacred to me, and I feel the set pe yahi tha ki when we leave set, we will not leave set till we get the shot right. If Janvi doesn't middle the ball, we'll do one more take, क्योंकि जब middle करेगी उसका expression अलग होगा। यही belief system था। set पे थोड़ा मजाक उड़ाते थे लोग कि ये तो shooting कम cricket clinic ज़्यादा हो गया, क्योंकि in between takes यही था कि maybe head is not on top of the ball, elbow position better हो सकता है, all the finer details. I think इसी में बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था। जानवी के लिए थोड़ा torture था, लेकिन I think Vikrant and me on set were just really enjoying trying to get the details right. But to be honest, sir, this is I feel extremely lucky that Abhishek and Vikrant, I got a chance to meet them and they were on this film. Honestly speaking, if Abhishek and Vikrant were not on this film, ये film बनती नहीं, because ये बहुत ही एक impossible task था, you know, to ask an actor who's never really understood the sport, played the sport, to become a cricketer on screen in where the expectation was so high. Maybe if this was a sport that I knew nothing about, I would have also been like, मुझे खुद नहीं पता, जो है ठीक है. But I think on this journey, Abhishek and Vikrant have been magicians, that they've given us so much of their time, given us their expertise, emotional support, and at some level, I really feel like in my life also, they are like the
mentors, guru, who I can kind of lean in on and talk about any aspect of life, and I know that they're there for me, and have that kind of wisdom to that big brother wisdom to kind of give me and Janvi on the film and in life in general. And I think even more than cricket exposure, it was also, I think, the emotional exposure. When we were making this film, I remember so many times we would practice in the nets in Bhandop or like different places, or I think I was taken to a couple of practice sessions with some of the other players that Abhishek sir was recruiting as well. And I don't know, and he'd keep talking to me about where each player's coming from, how they're working different jobs to make the cut and still putting in the hours into training, how he wants to empower all of these people, how Vikrant is spending his time nurturing them, and why that means so much to them. And I think that also helped so much in understanding कि ये क्रिकेटर बनने का सपना जो है, and सिर्फ क्रिकेटर बनने का सपना नहीं, बल्कि लोग किस हद तक जा सकते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, और किस तरह की जुनून की ज़रूरत पड़ती है इस दुनिया में to realize your dreams and make them come true. And I think that was very motivating to see, and it really did open my eyes and helped with the soul of this movie. नहीं, that's true actually. मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ ना वैसे भी इनफैक्ट इट्स वेरी ट्रू फॉर इंडिया कि हमारे घर में कोई बच्चा नहीं खेलता, एक्चुअली पूरी फैमिली स्टार्ट्स प्लेइंग क्रिकेट. Otherwise you can't achieve your goals. There is no chance if the entire family is not sacrificing their lives. मतलब एक बच्चा खेलता है, इसका मतलब पूरा पूरा परिवार जो है वो उसमें झोंक दिया जाता है. तुम डिफेक्टिव पीस, जिसे न बल्ला चलाना है न मेरी दुकान. मुझे एक सलाह देते जी, प्लीज प्लीज. मैं पक्का सिलेक्ट हो जाऊंगा पापा. मैं कुछ करना चाहता हूँ, अपनी पहचान में लाना चाहता हूँ पापा. मेरा सपना मत छीनिए पापा प्लीज. ये सपना? तू क्या सपना? आपकी इस घटिया दुकान में जिंदगी बर्बाद नहीं करनी मुझे अपनी. कोच बनूंगा मैं. जो खुद क्रिकेटर नहीं बन पाया है, उसके हाथ में कौन सा खिलाड़ी अपने भविष्य की बागडोर देगा? Thank you so much, guys. Thanks a lot. Wish you all the very best for Mr. and Mrs. Mahi. And just keep smiling, keep shining, keep just rocking. It was wonderful chatting with all of you guys.